بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی اپنے ساتھ ایک جادوئی کبوتر لائی تھی۔ وہ کبوتر اڑ کر یہ پتہ لگا لیتی کہ گاؤں کے کس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ سب لوگ میری بیوی کو پیسے دے کر اپنے رشتہ داروں کے گھر کی جاسوسی کروانے لگے۔ میں پیسے دیکھ کر خوش بھی ہوتا لیکن ساتھ ہی حیران ہوتا، کیونکہ میری بیوی مجھے کبوتر کو ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی، بیوی سو رہی تھی، میں نے کبوتر کو ہاتھوں میں پکڑا تو روح کانپ گئی۔ وہ کبوتر نہیں بلکہ ایک میری اماں نے بہت خوشی خوشی میری شادی کروائی تھی۔ میری بیوی بہت خوبصورت اور حسین تھی۔ اس نے شادی سے پہلے ایک شرط رکھ دی تھی کہ وہ اپنے ساتھ ایک کبوتر لے کر آئے گی اور اس کبوتر کو دیکھنے اور چھونے کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی، ورنہ میری بیوی اگلے روز صبح مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ مجھے شرط کافی عجیب لگی تھی اور میری شادی کی پہلی رات تھی، میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے سادہ سا سوال کیا تھا، اگر میں یہ شرط مان بھی لوں تو مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ میں نے آنکھوں میں چمک لی اپنے کچھ دیر پہلے کی حسین و جمیل دلہن سے سوال کیا تھا، میں بدلے میں آپ کو کیا دے سکتی ہوں؟ اس نے ماتھے پر انگلی رکھتے ہوئے سوچنے کی اداکاری کی تھی اور پھر آنکھوں میں شرارت لیے بولی تھی، میں ساری زندگی آپ کی باتیں مانوں گی، آپ کے ساتھ مخلص رہوں گی، آپ سے محبت کروں گی، آپ کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں کی طرح مانتے ان کی عزت کروں گی۔ اس نے بہت سمجھداری مجھے جواب دیا تھا، میں جو اس کے ہلتے لبوں پر نظر مرکوز کیے بیٹھا تھا، اس کی باتیں سیدھا میرے دل پر جا کر لگی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ شادی کی پہلی رات ہی میری بیوی میرا دل جیتنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میں خوش تھا کہ چلو اب زندگی سہل ہو جائے گی، لیکن قسمت میں جو لکھا تھا نہ اسے پہلے کوئی بدل سکا ہے اور نہ اب بدلنے والا تھا۔ میں بھی انجان تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میری بیوی نے کبوتر کے لیے چھت پر موجود کمرے کو استعمال میں لے لیا تھا۔ اب اس نے عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ اکثر شام کے وقت چھت پر چلی جاتی اور کبوتر کو پڑوسیوں کے گھر اڑا دیتی تھی، اور جیسے ہی کبوتر اڑ کے واپس اس کے پاس آتا تو جس گھر میں کبوتر اڑتا تھا اس گھر کی ساری خبریں میری بیوی کو دیتا۔ میری بیوی کی یہ حرکت مجھے بالکل نہ بھائی تھی، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ میرا اور میری ماں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس میں صرف کبوتر کے ذریعے دوسروں کے گھر کی جاسوسی کرنے والی عادت بری تھی، ورنہ تو وہ دل کی بہت اچھی تھی۔ میرا اور میرے گھر والوں کا وہ بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی۔ اب تو روز کوئی نہ کوئی ہمارے گھر پہنچا ہوتا تھا، کیونکہ ان کو پتہ کروانا ہوتا تھا کہ ان کے رشتہ داروں کے گھر کیا چل رہا ہے۔ مجھے تو یہ کام شروع سے ہی معیوب لگتا تھا کہ ہم کیوں کسی کی جاسوسی کرتے پھریں، اگر ان کو کچھ معلوم کرنا ہے تو وہ خود اپنے رشتہ داروں کے گھر جا کر معلوم کر لیں، یوں تیسرے بندے کو ان سب میں شامل کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ اور سب سے عجیب بات جو تھی وہ یہی تھی کہ آخر ایک کبوتر کیسے کسی کے گھر کی جاسوسی کر کے دے سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ہے بے زبان پرندہ، جیسے طوطے لوگوں نے پالے ہوتے ہیں۔ کہیں میری بیوی نے بھی ایسے ہی کبوتر کو بولنا تو نہیں سکھایا ہوا تھا؟ لیکن ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ آج تک تو کوئی بھی کبوتر نہ بول سکا تھا، تو یہ کیسے میری بیوی کو ساری معلومات فراہم کر دیتا تھا؟ بیوی نے تو پہلے دن سے ہمارا کبوتر کو دانا پانی تو دور دیکھنا بھی نصیب ہونے نہیں دیا تھا، بس گھر آئے لوگوں کی زبانی میں نے یہ سب سنا تھا۔ میری اماں کو بھی اپنی بہو کا یہ کام پسند نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں وہ اسے منع کیوں نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اماں تو کسی سے ڈرنے یا دبنے والی نہیں تھی۔ وہ تو اپنی بات چاہے کڑوی ہو یا میٹھی سب کے سامنے رکھنے اور بولنے کی ہمت رکھتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ میری بیوی کو یہ سب کرنے سے منع نہیں کر رہی تھی۔ میں جتنا اس بارے میں سوچتا جا رہا تھا، ذہن اور منتشر ہوتا جا رہا تھا، کوئی ایک سرا بھی دوسرے سے نہ مل رہا تھا۔ میرا ذہن اب یہ سوچ سوچ کر تھک چکا تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی سے اب اس معاملے میں دو ٹوک بات کر کے ہی رہوں گا۔ شام 5 بجے جب میں گھر واپس آیا تو میری بیوی ایک کونے میں ہماری پڑوس کی خالہ کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بہت آہستہ آواز میں اس کے قریب بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ مجھے اس کا ایک بھی لفظ سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ آخر وہ یہ سب کر کیوں رہی تھی؟ کیا یہ لوگ اسے یہ سب کرنے کے پیسے دیتے تھے؟ لیکن ایسا بھی کچھ نہیں تھا، اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میں نے اس پر دھیان نہ دیتے اپنا رخ سیدھا کمرے کی طرف کیا تھا۔ کمرے میں جانے سے پہلے میرے کانوں میں میری بیوی کی آواز پڑی تھی۔ وہ پڑوسی کی خالہ کو دروازے پر چھوڑتے کہہ رہی تھی،
अभी मेरे शौहर आ गए हैं, मैं कल आपको घर आकर तफसील से बता दूंगी। या आप एक काम करना कि दोपहर में मेरे घर आ जाना, ये सब सही रहेगा। इससे आपके घर वालों को भी बात का पता नहीं चलेगा। उसने ये कहते खाला को अलविदा किया था। खाला भी मुस्कुराकर अपने घर जा चुके थे। मुझे पीछे से दरवाजा बंद करने की आवाज आई थी। मैंने कमरे में आते ही अपने दुखते सर को दबाया था और अपने कपड़े अलमारी से निकाल कर नहाने के लिए चला गया था। ठंडे पानी से नहाते हुए भी मेरे जहन में ही सवालात गर्दिश कर रहे थे, जिनके जवाब आज मैं अपनी बीवी से लेकर ही रहने वाला था। और ये मैंने सोच रखा था कि अब मैं इसे मजीद ये सब करने नहीं देने वाला था। ये सब भी गुनाह था और मैं खुदा का खौफ रखता था। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील किए और कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गया था। इसी वक्त मेरी बीवी पानी का गिलास लेकर मेरे पास आई थी। आज आप जल्दी आ गए हैं, खैर है? उसने पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते मुझसे घर जल्दी आने का पूछा था। मैं हैरान था, पहली बीवी है जो शोहर के घर जल्दी आने पर सवाल कर रही थी। वरना तो बीवियां चाहती हैं कि उनके शोहर जल्दी घर आए और अपनी बीवी को टाइम दे। यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही थी। मैंने हैरान नजरों से इसकी तरफ देखते इससे पूछा था, क्यों, क्या हुआ बेगम? आपको मेरा जल्दी घर आना अच्छा नहीं लगा क्या? मेरा सवाल सुनते ही वो गड़बड़ा गई थी और वो बोली थी, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी कि कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं, क्योंकि आपकी आंखें मुझे काफी सुर्ख लग रही हैं। क्या कोई बात है जो आप करना चाहते हैं? मेरी बीवी की नजर बड़ी तेज थी। मेरे कहे बगैर उसने बस एक नजर मुझे देखते मेरे हालत के बारे में पता लगा लिया था। मैं इसकी जहानत का कायल हो चुका था, लेकिन इतनी ज़हीन होने के बावजूद भी वो जासूसी जैसा काम क्यों कर रही थी? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मैं आज आमने सामने बात करने का फैसला कर लिया था। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बस तुमसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है तुम मेरे सवालात का मुझे जवाब दोगी और मेरी बात सुनोगी। मैंने उसकी आंखों में देखते ये बात कही थी। वो इस वक्त मुस्कुराती आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। इसकी तवज्जो का मरकज बस मेरी जात थी और अपनी खूबसूरत और कमसन बीवी की तवज्जो खुद पर महसूस करते मेरी जगह कोई और भी होता तो यूं ही अपनी बीवी की इस कातलाना अदा पर जान निसार होता। मैं इसे देखते ही अपनी सोचों में मसरूफ था। जब वो बोली थी, आपने एक बात कही है, आप मुझसे 100 पूछ लें और मैं इतनी नाफरमान नहीं कि अपने महबूब शोहर को नाराज करूं, इसलिए आप जो भी पूछेंगे आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। उसने बड़ी मोहब्बत से मेरे हाथों को अपनी गिरफ्त में लेते हुए कहा था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैं अपनी बीवी का गुलाम हो चुका हूँ। इसकी बातें ही इतनी मीठी होती थी, भला कौन काफिर इससे नाराज होता या कोई सवाल जवाब तलब करता। लेकिन मेरा ये सब जानना भी जरूरी था, इसलिए मैंने खुद पर काबू पाते हुए इससे पूछा था, तुम जो ये जासूसी वाले काम अपने कबूतर से करवाती हो, क्या ये सच है? मैंने अब बराह रास्त उसकी आंखों में देखते ही पूछा था। मेरी बात सुनते मुझे यूं लगा था मेरी बीवी अचानक से बौखला गई थी, बल्कि इसके हाथ जो कि मेरी गिरफ्त में थे इन पर भी कपकपी तारी हो चुकी थी। लेकिन जब वो बोली तो यूं लगा जैसे उसके मुंह से शहद टपक रहा हो। आप भी ना, मैंने आपको शादी की रात ही तो बता दिया था अपने प्यारे कबूतर के बारे में, और अब आप शादी के 2 महीने बाद वही सवाल कर रहे हैं। मुझे तो लगा था आप मुझसे मेरे बारे में कुछ कहेंगे, मेरी खूबसूरती के बारे में कुछ कहेंगे। वो बड़े लाड से अपनी बात मुकम्मल करते मुझसे मीठा सा गिला भी कर गई थी। मैं इससे और क्या सवालात करता, मेरे सोचने समझने की सारी सलाहियत ही मफलूज हो चुकी थी। सामने बस मेरी महबूब बीवी थी जो कि हर काम में अच्छी थी, बस इसकी एक ही हरकत अजीब थी। लेकिन जिस तरीके से उसने मुझे जवाब दिया था मैं इससे इत्तेफाक करने लगा था। उसने तो ये सब मुझे शादी की रात ही बता दिया था और अब मैं बेवजह इस पर शक कर रहा था। मैंने भी सारी बातों को पस पुष्ट डाला और खाना खाने के बाद चाय पीकर अपनी बीवी के साथ बातें करते कुछ अच्छा वक्त गुजार रहा था। सुबह सवेरे उठकर मैं काम पर चला गया था। कल मेरी बीवी ने बातों बातों में मुझसे अपनी खरीदारी के बारे में बात की थी, इसलिए मुझे जल्दी घर जाकर इसे बाजार लेकर जाना था ताकि वो अपनी पसंद की चीजें ले सके। मैं काम खत्म करते जब घर की तरफ बढ़ा तो रास्ते में मुझे एक बूढ़ी औरत मिली थी जिसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूर घूर कर देखा था। मियाँ, दिखते तो तुम अच्छे घर के हो, तो फिर जरा अपनी बीवी को भी लगाम दो। मर्द वही है जो बीवी को काबू में करके रखे ताकि बीवी अपनी हदों से तजावज ना करे, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है।
बीवी ने अपने शौहर को जोरों का गुलाम बना रखा है। मियाँ जरा अपनी आंखों से पट्टी हटाओ और गौर से देखो तुम्हारी बीवी क्या करती फिर रही है। वो औरत मेरी तरफ देखते हुए मुझे मेरी बीवी के बारे में बातें सुनाने लगी थी। इस औरत की बातें सुनते मुझे गुस्सा भी बहुत आया था और परेशानी भी आने लगी कि आज एक औरत ये सब कहा है, कल को पूरा मोहल्ला ये सब बातें बनाएगा, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अब तो मुझे ये सब बंद करवाना ही पड़ेगा। मैं जब भी बीवी से बात करने जाता था वो इतनी मोहब्बत से आगे से बोलती थी, इतनी इज्जत करती थी कि मुझ में हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं इससे कुछ कह सकूं। मैंने इस औरत की तरफ मुस्कुराकर देखा था और कहा था, खाला आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मेरी बीवी तो बहुत सीधी सादी और भोली सी है, वो ये सब नहीं कर सकती। ये कहते ही मैं आगे बढ़ने लगा था जब उनकी अगली बात ने मेरे पाँव में जंजीरें डाल दी थी। मैं खूब जानती हूँ क्या तुम्हारी बीवी के पास एक कबूतर नहीं है। तुम्हारी बीवी के पास एक कबूतर नहीं है जो इसे सबके घरों की खबरें देता है। इन्होंने मुझे चेहरे से चश्मा थोड़ा आगे करते मुझे घूरते हुए कहा था। मैं यहाँ लाजवाब हो चुका था। मेरे पास अल्फाज ना थे कि मैं अपनी बीवी की सफाई में कुछ कह सकता। दरअसल खाला वो अभी मेरी बात मेरे मुंह में ही थी, वो जब एकदम से बोल उठी थी, मियाँ मैं सब जानती हूँ, मुझे ना समझाओ बल्कि जाकर अपनी बीवी पर काबू करो, क्योंकि आजकल उसके बड़े चक्कर लग रहे हैं। इम्तियाज के घर ये नहीं, यहाँ तक कि तुम बेखबर रहो और वहां तुम्हारी बीवी कोई गुल खिला दे। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा था। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनता घर आ चुका था। मेरे अंदर गुस्से का एक लावा उबर रहा था। यूं महसूस हो रहा था लावा मेरे रिश्ते को खत्म करके ही ठंडा होगा। मैंने घर आते ही मुझे दिल के साथ बीवी की शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार होने का कहा था, लेकिन आगे से उसका जवाब सुनकर मैं चकरा कर रह गया था। हम कल शॉपिंग पर चले जाएंगे, जा मुझे कबूतर के साथ बहुत जरूरी काम करना है। मैं कुछ देर तक कमरे में आ जाऊंगी। आप अगर थक गए हों तो इंतजार न करना, बल्कि खाना खाने के बाद सो जाना। मुझे हदायत करके खुद कमरे से बाहर जाने लगी थी। जब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था और मैंने इसे बाजू से पकड़ते अपने रूबरू कहा था, आखिर क्या करती फिर रही हो तुम? मैंने जरा सख्ती से इससे सवाल किया था। मेरी बात सुनकर उसने अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा था और बोली थी, क्या किया है मैंने? जरा बताएं, मुझे भी ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो आप इतने गुस्से में बात कर रहे हैं? वो मेरी तरफ देखते ही अपना हाथ छुड़वाते बोली थी, यही सब जो तुम करती फिर रही हो। आज मुझे सब कुछ सच सच जानना है। आखिर ये कबूतर वाला क्या किस्सा है? क्यों तुम ये सब कर रही हो? आखिर वजह क्या है ये सब करने की? जब ये बात शादी की पहली रात ही हो चुकी है तो हर बार आप एक ही सवाल क्यों पूछते हैं? क्या मैं आपकी बदकिरदार नजर आ रही हूँ? क्या मैं आपके घर वालों से बदतमीजी करती हूँ? क्या आपका हर हुक्म सर आंखों पर नहीं रखती? यूं सब कुछ करती हूँ तो ये सब करने के बाद अगर मैं अपनी खुशी से एक कबूतर पाल लिया है तो इसमें बुरा ही क्या है? कोई गलत काम तो नहीं करती हूँ, लोगों की मदद ही करती हूँ। इनको बता देती हूँ इनके रिश्तेदार क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या कर रहे हैं। सीधी सी बात है जिसका इल्म आपको पिछले 3 माह से है, फिर भी न जाने आपको क्या होता जा रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ ऐसा कुछ न करूँ जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे। आपकी हर बात मानती हूँ और अब मेरी एक ही ख्वाहिश थी जिस पर सवाल उठाने लगे हैं, मुझे शक की नजरों से देखने लगे हैं। क्यों? क्या आपको मेरे प्यार में कोई कमी नजर आई ही नहीं आई होगी? कैसे नजर आएगी? मैंने कमी कहीं पर भी नहीं रखी है। मैं आज आपको आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आगे से आपने मुझसे इस मुतल्लक कुछ पूछा तो अच्छा नहीं होगा। मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे फायदा हर बात मानने और सारे काम बखुशी करने के बाद जब आप मेरी एक ख्वाहिश का एहतराम नहीं कर सकते बल्कि मुझ पर शक कर रहे हैं तो यहाँ रहकर क्या करूंगी? मेरी बीवी ने रोते हुए अपनी सारी बातें मेरे आगे खोल कर रख दी थी। इसका मतलब था वो मेरा रवैया इतने दिनों से साफ महसूस कर रही थी, बल्कि खुद ही चुप थी। आज मौका मिला तो उसने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी थी। मैंने वक्त की नजाकत को वर मामला उल्ट होते देखकर खामोशी अख्तियार करते इस बात को समेट लिया था और थोड़ी देर में बीवी को भी राजी कर लिया था। वो फिर से पहले की तरह ही बोल चाल रही थी। यही तो खूबसूरती थी हम मियाँ बीवी के रिश्ते की। एक अहम आना में आकर जल्दीबाजी मियाँ फैसला नहीं लेते थे। अगर एक नाराज होता तो दूसरा मना लेता था और बाद में गलती का एहसास प्यार से करवा देते थे। इस बार भी यही हुआ था। अब मैंने सोच लिया था कि अब जो भी करना है मुझे ही करना होगा, क्योंकि मेरी बीवी तो ये सब सच बताने से रही थी।
अब मैंने कबूतर का ये राज खामोशी से जानने का फैसला किया था। अब मैं सारे सबूतों के साथ इससे बात करने वाला था। हैरानगी भई तक इसी बात की हो रही थी कि एक कबूतर कैसे किसी के घर जाकर इसकी जासूसी मेरी बीवी को करके दे सकता है। और जो इस औरत ने मेरी बीवी और इम्तियाज के बारे में कहा था, इस बात में कितनी सच्चाई थी ये भी जानना बाकी था। मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता था। मैंने सोच लिया था बीवी के सोने के बाद मैं रात को जाकर इस कबूतर का मायना करूंगा। अगर इसमें ऐसी क्या बात थी, क्या वाकई में वो बोल सकता था, या ये सब मेरी बीवी का एक ड्रामा था और इसका मकसद कुछ और था। और मेरी अम्मा भी खामोश क्यों थी? वो क्यों नहीं अपनी बहू को मना कर रही थी? सवाल बहुत थे, अब इनके जवाब बस ढूंढने थे, जो मैं जल्द ढूंढ लेने वाला था। बीवी के सोते ही जब मैं छत वाले कमरे में गया तो वहां का मंजर देखते ही मेरी अकल दंग रह गई थी, क्योंकि वहां तो कोई कबूतर था ही नहीं। अगर कबूतर ही नहीं था तो बीवी ये सब कैसे करती थी? शायद बीवी को मुझ पर शक हो चुका था, इसीलिए उसने कबूतर को छुपा दिया होगा। मैंने ये सोच जहन में आते ही हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन कबूतर कहीं नहीं मिला। मैं मायूसी से कमरे में वापस आकर लेट गया था। कितनी चालाक थी मेरी बीवी, जिसने मेरे चेक करने से पहले ही कबूतर गायब कर दिया था। लेकिन मैं भी अब पीछे हटने वाला नहीं था। मैं भी अब सच जानकर ही दम लेने वाला था। अगले रोज बीवी उठी तो मैंने इससे कबूतर का जिक्र किया था। मैं छत पर टहलने गया था, लेकिन मुझे कबूतर नजर नहीं आया था। कहा गया वो? मैंने पूछा तो इसका रंग उड़ा था और जल्दी से बोली थी, वो तो पड़ोस की खाला की दीवार पर जाकर बैठ गया होगा और फिक्र ना करे, मैं देख लूंगी। इसे उसने घबराते हुए कहा था। अरे हाँ, याद आया, तुमने कभी भी इसकी खुराक के लिए मुझसे कुछ भी नहीं मंगवाया। क्या वो कुछ नहीं खाता है? मेरा दूसरा सवाल दगा था। खाता है, खाता क्यों नहीं? मैं खुद इसके लिए सब कुछ मंगवा लेती हूँ, इसलिए आपको कभी तंग नहीं किया, उसने जवाब देते हुए अपने हाथ के नाखूनों को दांत से कतरना शुरू कर दिया था। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने हाँ में सर हिलाते उसे यकीन दिलाया था कि मैं इसकी बातों से मुतमिन हो चुका हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि मैं अब और शक में मुब्तला हो चुका था। इसे ये सब कहने के बाद मैंने सोच लिया था आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा, बल्कि बीवी पर नजर रखूंगा। इसीलिए तबीयत खराबी का बहाना करते मैं कमरे में चला गया था। बीवी ने सारे काम खत्म किए। इसके बाद फोन पर इसे कोई पता बताया गया था, जिसे नोट करने के बाद बीवी कमरे से बाहर निकली और छत की तरफ बढ़ी थी। मैं भी देख रहा था। पाँव इसके पीछे हुलिया थे। वो कमरे में जाकर बंद हो गई थी। जब बाहर आई तो उसके हाथ में एक अजीब सा कबूतर था। ऐसा मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। उसने जल्दी से इस कबूतर को दीवार पर रखा। उसने कबूतर को दीवार पर रखा था, लेकिन वो तो हिला भी नहीं था। लेकिन इसके बाद बीवी ने एक काम किया था, जिसके बाद वो उड़ना शुरू हुआ था और एक घर के ऊपर जाकर यहाँ वहां घूमने लगा था। मेरी बीवी कमरे में चली गई थी। मैं भी इसके पीछे गया और खिड़की से अंदर झांकने लगा था। बाहर एक नजर देखा तो वो कबूतर अब गायब हो चुका था। मैं हैरानो परेशान अपनी जगह पर खड़ा था। मैंने जरा सा आगे होकर देखा तो जो मंजर देखने को मिला, ऐसा तो कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। मैं अचानक से कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी अपनी जगह साकत हो गई थी। उसके हाथ में मौजूद वो चीज नीचे गिर पड़ी थी। उसका चेहरा यूं था जैसे काटो तो बदन में लहू ना हो। वो शदीद खौफजदा हो चुकी थी, जैसे उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी हो। आज तक तुमने जो कहा मैंने यकीन किया, लेकिन आज मुझे सब जानना है, वो भी सच सच, वरना जो भी आगे मैं फैसला लूंगा इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैंने बात खत्म की थी। वो शर्मिंदगी से सर झुकाकर बोलना शुरू हुई थी। मेरे घर में अक्सर झगड़े रहने लगे थे। मेरी फुप्पो बिज़ाहिर तो अच्छी थी, लेकिन अंदर से वो अपने बच्चों को समझाती रहती कि ऐसा जाकर करना ताकि मेरा भाई मेरी मुट्ठी में रहे और मेरी भाभी को इसकी औकात याद रहे। इसी के चलते ब्यात इतनी बड़ी कि एक दिन अम्मा ने खाली पेट तेजाब पी लिया और थोड़ी देर अस्पताल में रहने के बाद वो दम तोड़ गई। तब से मेरे दिल में इंतकाम की आग थी। मैंने ये ड्रोन कैमरा खरीद लिया था, जो कि कबूतर की शक्ल का था। इसके जरिए मैंने फुप्पो की सच्चाई एक वीडियो में रिकॉर्ड करके अपने अब्बा को सुनाई थी। इसके बाद से मैंने सबको इनके रिश्तेदारों की जासूसी करके बताना शुरू कर दी थी, ताकि किसी और की माँ का अंजाम मेरी माँ की तरह का ना हो। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था ये सब करने का। मैं तो मदद करने की गर्ज से ये सब करती थी, किसी को पता ना चले, इसलिए कबूतर की शक्ल का ड्रोन कैमरा खरीदा था। आपकी अम्मा को भी मुझ पर शक था, लेकिन जब इनको मैंने उनकी भाभी का असल चेहरा दिखाया तो वो यकदम से चुप चुप रहने लगी थी और मुझे भी ये काम करने से मना ना किया। इनको मालूम था मैं कोई गलत काम नहीं करती। आपको इसलिए नहीं बताया कि आप ये सब करने ना देते। मैंने इससे इम्तियाज के घर जाने का किस्सा पूछा तो वो बोली इसकी माँ ने ये सब करने का कहा था,
کیونکہ امتیاز کو ایک لڑکی پسند تھی لیکن اس کی ذات الگ تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی وہ لڑکی صحیح ہے یا نہیں۔ جس عورت نے آپ کو میرے خلاف بھڑکایا وہ عائشہ پڑوسی کی پھپھو ہے، جو کہ ایک نمبر کی مکار عورت ہے۔ اس کا کام بس لڑائی کروانا ہے۔ اپنی بیوی کی ساری باتیں سن کر میں اب اپنی جگہ خاموش ہو چکا تھا۔ بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ میری بیوی کی ماں کے ساتھ جو ہوا وہ غلط تھا اور بیوی نے جو راستہ اپنایا وہ بھی غلط تھا۔ میں نے اسے پیار سے سمجھا کر 1 مہینے کے اندر وہ ڈرون کیمرہ جلا دیا تھا۔ اسی دوران میری بیوی بھی حاملہ ہو چکی تھی۔ اس کا دھیان بھی ان سب سے ہٹ چکا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اس کی نیت بری نہیں تھی لیکن راستہ اس نے غلط اختیار کیا تھا۔ اس کی اچھی بات ہی یہی تھی کہ وہ سمجھانے سے فوراً سمجھ جاتی تھی۔ اس کے بعد سے اس نے دوبارہ سے وہ کام کبھی نہیں کیا تھا۔ میں اسے قرآن سنت کی روشنی میں بتایا تھا کہ یہ کام غلط ہے اور ویسے بھی ہمارا باتوں سے لا علم رہنا ہی بہتر ہے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر ہمیں معلوم پڑ جائے کہ سامنے والے کے ہمارے بارے میں کیا خیالات ہیں، ہم جینے کی خواہش چھوڑ دیں گے۔ کوئی کسی کا مخلص نہیں ہے۔ جیسے ہمارے رب نے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے ویسے ہی ہمیں بھی لوگوں کا پردہ رکھنا چاہیے۔ رب کریم نے فرمایا ہے تم لوگوں کی عیب ظاہر نہ کیا کرو، میں تمہارے عیب ظاہر نہیں کروں گا اور معاف کر دوں گا۔ بے شک وہی پاک ذات ہے۔ کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے یہ نہ سوچا کرے، بس اپنی زندگی کو اچھے سے گزاریں۔ ہمیں ہمارا نامہ اعمال سیدھا ہاتھ میں لینا نصیب ہو سکے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اگر تمہیں ہونے عزیز کے مطابق کسی کے خیالات کا علم ہو تو اس کا ذکر اپنے اس عزیز کے ساتھ ہرگز نہ کرنا، کیونکہ اگر کسی نے تیر مارنے کے لیے چلایا ہے اور وہ اگلے بندے کو نہیں لگا تو تم اس شخص کو وہ تیر لے جا کر خود اپنے عزیز کے سینے میں پوست نہ کرو۔ اس کا مطلب یہی ہے اگر ہمیں اپنے کسی بھائی یا کزن کے بارے میں معلوم پڑے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں تو لوگوں کا کام تو کہنا ہے آپ وہ باتیں سن کر اپنے بھائی، کزن یا کسی کو بھی نہ بتایا کریں۔ اس سے جس انسان کو آپ وہ بات بتائے گا اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ سوچے گا جس نے بتایا ہے وہ بھی میرے بارے میں یہی تو نہیں سوچتا، اور ایسا سوچتے سوچتے ہی لوگ ڈپریشن جیسے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز سے پرہیز کیا کریں، باتیں خود تک ہی محدود رکھا کریں۔ آپ بھی خوش رہیں گے اور اگلا شخص بھی خوش رہے گا۔ آج میرے 2 بچے ہیں۔ میری بیوی ایک پرفیکٹ شریک حیات ثابت ہوئی تھی۔ ہمیں خود بھی اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے۔ بیوی کی الگ جگہ ہے، بہن کی الگ، اور ماں باپ اور باقی رشتوں کی اپنی جگہ ہے۔ جس کی جو جگہ ہے اسے وہی رہنے دیا کریں۔ اس سے تجاوز کرنا چاہیں گے تو نقصان آپ کا اپنا ہی ہوگا۔ میری بیوی نے اپنے ماضی کی وجہ سے کبوتر کے نام پر لوگوں کے گھر کی جاسوسی کرتے صحیح کیا تھا۔ اس کی وجہ سے کئی گھر بچے تھے تو کئی گھر اجڑ بھی گئے تھے۔ کیا یہ سب صحیح ہوا تھا؟ کیا میں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے بیوی کا نہ صرف سچ جانا بلکہ اسے پیار سے سمجھا کر ایک موقع دے کر صحیح کیا، یا مجھے اسے اس غلط کام کرنے کی وجہ سے طلاق دے کر فارغ کر دینا چاہیے تھا؟